students. So in this session, we are going to again start a new chapter, and this chapter is Panchayati Raj. Panchayati Raj. This is a word we are very familiar with. Panchayat, Panchayati Raj, Panchayati system, सरपंच and प्रधान. अलग अलग जगह पे उस जो विलेज का हेड होता है उसे हम अलग अलग नामों से बोलते हैं. बहुत सारी जगह सरपंच कहते हैं, बहुत सारे लोग प्रधान बोलते हैं, प्रधान. एंड बहुत जगह पे प्रधान जी, ग्राम सभा ऐसा वर्ड होता है. एक ग्राम सभा, एक होता है ग्राम पंचायत बोलते हैं. So what do we mean by these all things? Okay, we are going to study about the local self-government, the Panchayati Raj system, Pradhan, Gram Sabha, Gram Panchayat, the representation, the local level representation. Okay, so what happens after people elect their representatives? How are decisions made? Let's look at how this takes place in rural area. Here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answer for the elected representative. So in the previous chapter, we have studied about government and the elements of government, the types of government, the level of government. Okay. And there are 3 levels of government: national level, which we call central government. The second is state level, which we call state government. And the third is local government, or we can say the local level government, or we can say panchayat or municipality, right? And in this session, we are going to discuss about local government. जैसे नेशनल लेवल गवर्नमेंट में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे चूज होते हैं, एमपी वगैरह जिनसे एमपी कहते हैं. ओके. एंड स्टेट लेवल में सीएम एंड जो भी स्टेट लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, उनसे एमएलए बोलते हैं. एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस about local government in this chapter. What is local government? What are the persons who are in local government? How many persons are participate in local government? And what are the functions of local government? Okay. So let us continue our chapter, start our chapter. This is a photo of a village. People are discussing. These 5 are sarpanch. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 sarpanch and these are villagers. Okay. So, and what is going on between them? It's a special day today. Everyone rushing to get the Gram Sabha. Do you know why? Because Gram Sabha is holding its first meeting after the election of the new Panchayat system. ठीक है. तो वो यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो हुए हैं एक मीटिंग के लिए. मीटिंग मतलब जो यहाँ इस गांव में एक नया इलेक्शन हुआ है और ये 5 और सरपंच इलेक्ट हुए हैं और उनकी आज एक पहली मीटिंग है, इसलिए ये सारे के सारे विलेजर्स जो हैं यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं. अब इन लोगों की बातें सुनेंगे, इन लोगों के व्यूज सुनेंगे. ओके. देन द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर वेरी कीन टू फाइंड आउट देयर न्यू पंचायत लीडर हैव प्लान्ड फॉर द विलेज. और इस मीटिंग में होने क्या वाला है? इस मीटिंग में जो भी 5 सरपंच हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमें अपने गांव के लिए क्या स्कीम बनानी है, क्या डेवलपमेंटल स्कीम बनानी है, पहले हमें क्या काम करना है. ओके. सो दे विल डिस्कस अबाउट दिस, दे विल प्लान अबाउट दिस. एंड जो भी लोग सारे जो भी विलेजर्स वहां पे आए हुए हैं वो सब लोग वहां पर पंचायत की मीटिंग में आएंगे और उन लोगों के व्यूज सुनेंगे कि उनके लीडर्स ने विलेज के लिए क्या प्लान किया है. व्हाट आर देयर थिंकिंग. ग्राम सभा. अब ग्राम सभा क्या होती है? हमने बहुत बार सुना है ग्राम सभा, प्रधान, सरपंच, ग्राम पंचायत, ये सब होती क्या है? तो ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज आल्सो कॉल्ड सरपंच. प्रेसिडेंट होता है उसे सरपंच कहते हैं. एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत, द पंच, presenting a plan on repairing the road that connect the village to the main highway. After this discussion moves to the subject of water and water shortage. Okay. तो क्या है कि यहाँ पर जो लोग हैं
इसमें 5 लोग हैं, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3, 4 एंड 5। जो ये पांचों लोग हैं, इनमें से एक होता है इनका प्रेसिडेंट। मान लीजिए कि ये जो है ये बंदा, ये इनका प्रेसिडेंट है, ठीक है। सो इट ही विल बी कॉल्ड सरपंच। प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। इसे सरपंच बोल देंगे। बहुत गांव में इसे प्रधान भी बोलते हैं, प्रधान। ओके। और ये जो चारों लोग हैं, इन लोगों को बोलेंगे पंच। ओके, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ दिस पंचायत, पंच। ठीक है। तो ये पांचों लोग आकर मीटिंग कर रहे हैं, और वो लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें अपने एक गांव में, विलेज में एक रोड बनवाना है जो कि मेन हाईवे से जाकर कनेक्ट हो जाए। इस चीज के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद वो अपने गांव में वाटर की क्या प्रॉब्लम है, उस पर क्या काम करने हैं, वाटर शॉर्टेज जो है वो कैसे खत्म करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। और ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है उसमें आता कौन कौन है? इसका मतलब कि जैसे आपके ना टीचर मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, उसमें कौन कौन आता है? इसमें ये तो है नहीं कि आपके रिलेटिव्स कोई भी चले जाए, नहीं। आपकी टीचर होंगी, आप होंगे मार खाने के लिए, और एक आपके पेरेंट्स होंगे। कम नंबर आए तो पेरेंट्स मारेंगे, टीचर मारेगी। ज्यादा नंबर आए फिर डांट पड़ेगी, थोड़ी बहुत पड़ती ही है सबको। ठीक है। तो ये आप हैं, 3 लोगों की मीटिंग होती है, पेरेंट, टीचर और मीटिंग। ठीक है। और ऐसे ही जो ग्राम सभा है, इसमें कौन कौन आना अलाउड है? इसमें आते हैं उस गांव के, जो भी, जिस भी गांव की ग्राम सभा है। मान लीजिए ये एक्स गांव है, इस गांव में 5,000 लोग रहते हैं, इस गांव की ग्राम सभा है, तो इसमें ये 5,000 लोग आएंगे जो भी इसमें एडल्ट हैं, जिन्होंने वोट दिया है। बच्चे नहीं, मतलब 18 से प्लस के जो भी लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, वो सारे के सारे इस ग्राम सभा की पंचायत में आएंगे। और जो भी एरिया इसमें इन्वॉल्व होता है, दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेजेस। बहुत सारे गांव की पंचायत, पंचायत जो सभा होती है उसमें बहुत सारे लोग, विलेजेस इन्वॉल्व होते हैं। लाइक 4-5 विलेजेस की एक ही ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत। कभी कभी होता है कि हर विलेज की अलग अलग ग्राम पंचायत होती है। कोई बड़ा विलेज है, उसमें 12-15 गांव आते हैं, उनकी पंचायत होती है। ठीक है। कोई छोटा विलेज है, कभी कभी होता है कि कोई दूर है विलेज, तो उसकी एक अलग ही पंचायत है। ठीक है। इन सम स्टेट्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ विलेज मीटिंग आर हेल्ड फॉर ईच विलेज। एनीवन हु इज 18 18 ईयर ओल्ड और मोर हु हैज द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। और ग्राम सभा का मेंबर कौन कौन होगा? 18 से ऊपर की एज का जो भी वोटिंग के लिए एलिजिबल है, वो सारे ग्राम सभा की मेंबर होते हैं, एलिजिबल होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर बनने के लिए। ओके। सो ईच पंचायत, ईच विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। वी विल डिस्कस दिस पॉइंट लेटर। फर्स्ट लेट अस डिस्कस कि उस गांव के जो पंच मिले हैं, उन लोगों ने क्या क्या डिसीजंस लिया है। ओके। दे वर टॉकिंग अबाउट द वाटर स्कार्सिटी इन द विलेज, राइट। एंड द उन्हें एक अपने गांव से जो मेन हाईवे है वहां तक एक रोड बनवानी है। उसके बाद वो वाटर और वाटर शॉर्टेज के बारे में बात करते हैं। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू हैव बीन गोन डाउन एवरी ईयर। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज स्वीपिंग इनटू द ग्राउंड। आजकल हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पानी की। बहुत सारा एरिया ऐसा है कि जहां पर पानी है ही नहीं। वर्ल्ड बैंक और बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अकॉर्डिंग 20% कम से कम लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास फ्रेश वाटर पीने के लिए नहीं है। बहुत सारे यूरोपियन, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पानी पीने के लिए नहीं है। हमारे कंट्री में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है। सो और ये होता कैसे है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल गिरता चला जाता है। हम जितना पानी निकाल रहे हैं उतना पानी जमीन में जा नहीं पा रहा है, ताकि जो पानी निकल रहा है और जा रहा है वो बराबर हो जाए और वाटर का लेवल बना रहे। हम पानी कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, अब हमारी कितनी सारी नीड्स हो गई हैं, तो कंज्यूम ज्यादा होता है। उस गांव में भी वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है। अनदर मेंबर अनवर देन टेल एवरीवन ही हैज सीन वे ऑफ कंजर्विंग वाटर। कोई अनवर है, वो खड़ा होता है, बोलता है कि मैंने देखा है, मैं बता सकता हूँ कि ऐसा, एक मैंने एक एग्जाम्पल देखा है कि हम अपने गांव में कोई ऐसा सिस्टम चलाते हैं, जैसे कि वाटर रिफिलिंग हो जाएगी। और उसने वो सिस्टम देखा था, रिचार्जिंग इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कोई विलेज है, वहां पर उसने वो देखा था
He had once gone to visit his brother. जब वो अपने भाई के यहाँ मिलने गया था. It was called watershed development and he had heard that the government gave money for this work. जब वो अपने भाई के यहाँ कहीं और मिलने गया था महाराष्ट्र में, देन उसने देखा था कि वाटरशेड डेवलपमेंट एक एक टर्म होता है, वाटरशेड डेवलपमेंट, जहां पर गवर्नमेंट आपको पैसा देती है ताकि आप अपने एरिया का जो वाटर टेबल है उसे बैलेंस कर सकें. ठीक है. और उसने उसे पता चला कि वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने उसे पैसा दिया था और उस गांव की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी. सो वो कहता है कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं. पंचायत में जितने भी लोग आए हैं, ग्राम सभा की मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं, सब अपने अपने व्यूज रख सकते हैं, सब अपने अपने बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर इसके लिए ये बात सही है या नहीं. और पंच सब लोगों की बात सुनकर उस पर डिसीजन लेते हैं किसी भी मैटर पर. In his brother village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. Everyone thought this was an interesting idea and Gram Panchayat asked to find out it in detail. ठीक है. तो अनवर बताता है कि उस जो वाटरशेड डेवलपमेंट जो मतलब स्कीम है या फिर प्रोग्राम है, उसमें क्या होता है कि हमें अलग अलग बहुत सारे ट्रीज प्लांट करने होते हैं, डैम्स बनाने होते हैं, चेक डैम्स, टैंक बनाने होते हैं. ठीक है. और ग्राम सभा के जो लोग हैं और भी गांव के जो लोग हैं, उन्हें ये सिस्टम इंटरेस्टिंग लगता है. वो बोलते हैं हाँ, हम पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ लगाएंगे तो बारिश होगी और पानी धरती में ज्यादा से ज्यादा जाएगा. चेक डैम बना सकते हैं, मतलब पानी जो भी आउटफ्लो हो रहा है उतना आउटफ्लो ना हो, रिवर में जो भी पानी चला जाता है वो पानी रिवर में इतना ना जाए. ओके. सो नेक्स्ट स्टेज क्या डिसाइड होता है. अब विलेजर कॉल्ड Ija began the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. The head pumps water has gone below water level. The point up to which the ground has been drilled, we hardly get any water in the tap. Women have to walk 3 kilometers away. One of the members suggested piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. But the others think that will be expensive. It's better. Okay. So ये पॉइंट है कि तीजा एक कोई किसान है और वो उस मेंबर में उस मीटिंग में आता है, वो उस मीटिंग का मेंबर है, विलेजर है. एंड ये से कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं किसी दूसरे गांव से, मतलब पाइपलाइन कहीं होगा पानी ज्यादा, वहां से पाइपलाइन बिछवा दें और हमारे गांव में पानी आ जाए. हमारी जो फीमेल्स हैं, वुमेन है हमारे गांव की, उन्हें 3-4 किलोमीटर ट्रेवल करके जाना पड़ता है पानी लाने के लिए. तो ग्राम सभा के जो लोग कहते हैं कि हाँ, आइडिया तो ठीक है बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव. इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से, पाइप के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंजीनियर्स के लिए, लेबर के लिए, इतना पैसा आएगा कहाँ से कि दूसरे गांव से हम अपने गांव तक पाइपलाइन बिछवा लें. ठीक है. और उसके बाद अनवर सजेस्ट करता है कि वाटर शेड जो डेवलपमेंट स्कीम है हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं और चेक डैम बना सकते हैं. ओके. जब गवर्नमेंट जो ग्राम सभा है वो डिसाइड करती है कि हाँ, अनवर का सजेशन ठीक है. द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ बिलो द पॉवर्टी लाइन विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा. और एक उन्होंने डिस्कस किया किस चीज के ऊपर, एक पॉइंट उन्होंने वाटर के ऊपर डिस्कस किया. ठीक है. एक पॉइंट उन्होंने अपनी प्लानिंग के ऊपर बताया कि हम ये करेंगे गांव में. ठीक है. एंड अब वो फाइनलाइजेशन कर रहे हैं कि हमारे गांव में बिलो पॉवर्टी लाइन में कौन कौन से लोग आते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे लोग हैं. जैसे कोई भी पंचायत होती है, गांव में सबको पता होता है कि किसके पास कितना पैसा है, कोई पॉवर्टी लाइन से नीचे है, क्या वो अपना परिवार चला पा रहा है या नहीं. जो गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर होती है, उसे कैसे पता चलता है कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के अंडर हैं. वो लोकल लेवल का काम होता है. लोकल लेवल गवर्नमेंट वो लिस्ट बनाती है कि हमारे गांव में कितने लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे की जरूरत है अपने परिवार को चलाने के लिए. ओके. वो एक पॉवर्टी लाइन की जो लिस्ट है उसे देखते हैं, बताते हैं कि हाँ ये लोग ठीक है, इस लिस्ट को हम अप्रूव करते हैं. ओके. as soon as the list is read out, people begin to whisper. Natwar has just got a TV and his son has sent to him new motorcycle. How can he be below poverty line? Surajmal muttered to the person sitting next to him. Suraj says to Suki bhai, how did Birju name get on the list? He has so much land. The list should have only poor people, and Om Prakash is a landless laborer who can barely make ends meet. Yet his name is not in the list. You know that both Natwar and Birju are friends of Amir Chand, who can counter Amir Chand's power. Suki Bhai says, Amir Chand,
was the earlier zamindar of the village and still has control over the lot of land, but we should get Om Prakash name put in. तो क्या होता है, जब वो जो पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लिस्ट को चेक कर रहे हैं, उसमें वो देखते हैं कि कुछ ऐसे विलेजर्स हैं जिनके पास काफी जमीन है, काफी जायदाद है, पैसा है, वो उनके नाम भी उस लिस्ट में शामिल हैं। बट एक एक दो ऐसे विलेजर हैं जिनके पास जो लेबरर हैं, जिनके जो लैंडलेस लेबरर हैं, जिनके पास इतनी जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी उनका नाम उस लिस्ट में इन्वॉल्व नहीं है। तो वो लोग उस पर अपना व्यू रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं। वो बोलते हैं कि इन लोगों के नाम यहाँ क्यों हैं, जो विलेजर्स हैं वो रखते हैं अपना ओपिनियन, ठीक है, और पूछते हैं कि जिसका होना चाहिए उसका क्यों नहीं है। सरपंच इस बात को नोटिस करते हैं एंड दे आस्क कि बिरजू और नटवर का नाम क्यों है, उसे नाम को हटाओ, क्योंकि वो पुराने जो प्रधान था उसके रिलेटिव्स थे, उसने नाम डाल रखा था। बट नए जो सरपंच आते हैं वो उस नाम को हटाते हैं, और जो भी जरूरी मटेरियल, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, आई मीन ओम प्रकाश से लेते हैं कि ये गरीब है, इससे डॉक्यूमेंट लीजिए और इसका नाम बीपीएल लिस्ट में डालिए, क्योंकि ये बहुत ही गरीब है। ओके, सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैज बीन मिस्ड आउट। सरपंच पूछते हैं जिसने भी ये लिस्ट बनाई है उसका नाम क्यों नहीं है ओम प्रकाश का, क्योंकि वो तो गरीब किसान है, बहुत पुअर है, और जो अमीर है उनके नाम यहाँ पर क्यों है, ठीक है। हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल, ये बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन का जो सर्वे है ये किसने लिया है? ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड। और जो जिस भी ऑफिसर ने वो सर्वे बनाया था वो कहता है कि मैं जब ओम प्रकाश के घर गया, उसका घर बंद था, वो अपनी सफाई तो देगा ना कि मैंने उसका नाम क्यों नहीं लिखा है। he may go out somewhere to look for work. The sarpanch gave instruction that Om Prakash family income be looked, and at if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. जो सरपंच है वो डिसाइड करते हैं कि ओम प्रकाश से बात कीजिए, उसकी देखिए कि उसकी कितनी इनकम है, और अगर उसकी इनकम जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है लिस्ट में उससे कम है तो उसका नाम लिस्ट में डाला जाएगा। ओके, तक ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत क्या होती है? अब तक हमने पढ़ा ग्राम सभा के बारे में। ओके, ग्राम सभा में वो सारे लोग आते हैं जो भी उस एरिया में या उस ग्राम सभा में इन्वॉल्व हैं, जो जिन लोगों ने भी उसमें 18+ के हैं, जिन लोगों ने उसमें वोट दिया है, हु आर एलिजिबल टू गिव वोट। Now come to the next point, Gram Panchayat. Gram Panchayat meet regularly and one of its main tasks is to implement development program for all villages that come under it. As you have seen, the work of Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. दो टर्म है हमारे पास, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं पहले हम। ये दोनों टर्म थोड़े बहुत एक जैसे लग रहे हैं पर डिफरेंस है। कैसे? एक है ग्राम सभा, ओके, द नेक्स्ट इज ग्राम पंचायत, ठीक है। जो ग्राम सभा है वहां पर जितने भी लोग जिन्होंने वोट दिया है, 18+ वोट जिन्होंने भी वोट दिया है, वो सब लोग आएंगे। मतलब मान लीजिए कि उस गांव की पॉपुलेशन 5,000 है जिन्होंने वोट दिया है, तो 5,000 लोग इस ग्राम सभा का पार्ट होंगे, और उसके बाद जो 5 पंच है वो 5 है। ग्राम पंचायत में क्या होता है, ये जितने भी उस गांव में जितने भी गांव उस ग्राम पंचायत में इन्वॉल्व हैं, उसके जो सरपंच हैं, वो सारे लोग जो ऑफिशियल उस काम में आते हैं, वो सारे लोग मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या क्या काम होने हैं। और वो सिर्फ उसी काम को डिसाइड कर सकते हैं जो ग्राम सभा से, मतलब जो लोगों की सभा हुई थी उससे अप्रूवल हुआ है। जैसे कि अभी हमने बीपीएल की जो लिस्ट है उसका देखा, बीपीएल की लिस्ट जब पढ़ी गई तो उसमें बहुत सारे नाम ऐसे थे जो नहीं होने चाहिए, तो लोगों ने रिफ्यूज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। तो लोगों ने तो सरपंच ने क्या डिसाइड किया कि ये नाम चेंज किए जाएंगे, उसके बाद ग्राम सभा से उस लिस्ट पर अप्रूवल लिया जाएगा, देन इट विल बी सेंड टू ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत उस पर काम करेगी। ओके, तो ग्राम पंचायत रेगुलरली मीट करती है, और उसका एक टास्क ये होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये होता है कि जो भी ग्राम सभा में डिसीजंस लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, उनको एनफोर्स करना। ओके, इन सम स्टेट ग्राम सभा फॉर्म कमेटी लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी। देयर कमेटी इंक्लूड सम मेंबर ऑफ ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। अब जो जो लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है ना, तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है, उसका जो सिस्टम होता है वो सेंटर डिसाइड नहीं करता है। हर स्टेट के पास अपनी पावर होती है,
कि उसे अपने स्टेट में किस तरह की लोकल लेवल गवर्नमेंट बनानी है। कुछ स्टेट में 2 टियर होती है, कुछ स्टेट में 3 टियर होती है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कमेटी एंड ऑल। ठीक है, तो कुछ में ऐसे ही अलग अलग गांव के पास अपनी अपनी पावर होती है, पंचायत के पास, ग्राम सभा के पास। कुछ ग्राम सभा क्या करती है, कमेटीज बना लेती है अपनी अपनी, कि ये 10 लोगों की ये कमेटी है, इसका काम है डेवलपमेंट को देखना। ये 15 लोगों की कमेटी है, इसका काम है गांव में पॉवर्टी को देखना, या फिर मान लीजिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखना। ठीक है, ये 2-4 लोगों की कमेटी है, इन लोगों का काम है कि गांव के हेल्थ सिस्टम को देखना। ठीक है, अलग अलग कमेटी बना लेते हैं। और जो ये कमेटी है बार बार में जाकर, टाइम से जाकर गवर्नमेंट से मिलती है, इट मीन ग्राम पंचायत के लोगों से मिलती है और बताती है कि यहाँ ये दिक्कत है। ठीक है, और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के लोग किसी भी टास्क को लेकर स्पेसिफिकली मिलते हैं, डिसाइड होता है कि ये काम कैसे किया जाएगा। ओके, एंड हियर आर 2 पंच फ्रॉम महाराष्ट्र हु अवॉर्डेड निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 फॉर द एक्सीलेंट वर्क डन देम इन द पंचायत। ग्राम पंचायत में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पंचायत को कुछ प्रधान ऐसा काम कर देते हैं कि गांव के डेवलपमेंट, गांव को सिस्टम ही चेंज कर देते हैं गांव का बिल्कुल। ठीक है, तो ये अवार्ड दिए जा रहे हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। लेट अस सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत एबल टू डू। हरदास की जो ग्राम पंचायत है उसके पास क्या क्या पावर है काम करने की। डू यू रिमेम्बर द ऑप्शन दैट वाज सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। हरदास विलेज में जो ग्राम सभा हुई थी, ग्राम सभा की मीटिंग हुई थी, उसमें डिसाइड किया गया था कि 2 ओपिनियन आए थे। एक तो कि दूसरे गांव से पाइप डलवा दो, तो उन लोगों ने बोला भाई इसमें तो बहुत खर्चा होगा, कैसे कर सकते हैं। दूसरा ओपिनियन आया था कि वाटर शेड जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं हम, जिसमें कि ट्री प्लांट करे जाएंगे और वाटर वाटर लेवल के लिए चेक डैम्स बनाए जाएंगे। ओके, उन लोगों ने कहा कि हाँ ये ठीक है, हम ये करेंगे। When the Hardas Gram Panchayat had a meeting, this point was brought up again by some of the member Panch. This meeting was attended by Sarpanch, ward member, Panch and the secretary. अब जब दोबारा हरदास ग्राम सभा की जो पंचायत होती है वहां पर कितने लोग मिले, सरपंच आया, वार्ड मेंबर आया, मतलब वार्ड मेंबर मतलब जो भी, और 5 पंच हैं वो लोग आए, और उसके बाद सेक्रेटरी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ऑफिसर होता है, ये आया। ठीक है, देन ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस्ड द सजेशन टू डीपन 2 हेड पंप्स एंड क्लीन 1 वेल सो दैट द विलेज कुड नॉट गो विदाउट वाटर। जब ये तीनों लोग मिले, सरपंच, पंच और सेक्रेटरी, तो उन लोगों ने बताया कि भाई ग्राम सभा में ये डिसाइड हुआ था कि वाटर की शॉर्टेज के ऊपर हमें एक काम करना होगा, क्योंकि हमारे गांव में वाटर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो लोगों को, औरतों को 3-3, 4-4 किलोमीटर जाना पड़ता है और फ्रेश वाटर नहीं है पीने के लिए। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, वाटर शेड डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो काफी लंबा है, पेड़ लगाएंगे, बड़े होंगे, डैम बनाए जाएंगे, वो ठीक है, पर उससे पहले क्या करते हैं कि 2 हैंडपंप लगवा देते हैं ताकि सारे विलेज को पानी मिलता रहे टाइम टू टाइम। द सरपंच, मतलब पंचायत का जो प्रेसिडेंट है, उन पांचों का जो हेड है, suggested that since the panchayat had received some money for maintenance of head pump, this could be used for completing this work. सरपंच कहता है कि हाँ, हमें गवर्नमेंट से पैसे मिले हैं, तो ऐसा करते हैं कि हमारे पास पैसे भी आ चुके हैं तो हम हेडपंप लगवा देते हैं। ओके, द मेंबर एग्रीड एंड सेक्रेटरी रिकॉर्डेड दिस डिसीजन। सारे मेंबर मान जाते हैं, मतलब सरपंच मान जाता है, पंच मान जाते हैं, एंड उसके बाद जो सेक्रेटरी है वो इस बात को रिकॉर्ड कर देता है कि इतने पैसे ग्राम सभा में हेडपंप लगाने के लिए खर्च हो रहे हैं। सेक्रेटरी इज अ ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द द गवर्नमेंट। मतलब कि जो पंचायत में जो प्रधान खड़े होते हैं, जरूरी तो नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, और या फिर मतलब एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, बट जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा हो। फिर भी तो एक सेक्रेटरी, जैसे कि सीएम पीएम के सेक्रेटरी होते हैं, उसी तरीके से प्रधान के लिए भी एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी रिकॉर्ड कर लेता है कि यहाँ पर इतने इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं और ऐसे ऐसे ये सारा काम चल रहा है। उसे गवर्नमेंट को भी तो भाई बताना है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। The member then went to discuss the option for a long-term solution. They were sure that the Gram Sabha member would ask a question at the next meeting. Some punch asked whether the watershed program would make a
sustainable difference to the water level. A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. Okay, तो क्या होता है कि जब डिसाइड हो जाता है कि हमें 2 हैंडपंप लगवा देने हैं, वेल खुदवा देने हैं, उसके बाद कहते हैं जो सरपंच है वो कहता है कि 2 हैंडपंप लगवा देने से, वेल खुदवा देने से आज की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, 1 महीने 2 महीने 1 साल, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम है, पानी की शॉर्टेज जो है वो कैसे खत्म होगी हमारे गांव से। मतलब कोई भी काम हमें करना है तो वो ऐसा करो ना कि लॉन्ग टर्म में चलता रहे, 2-4 पीढ़ियों बाद तक भी हमारे गांव में जो आज प्रॉब्लम है वो कभी प्रॉब्लम हो ना, वाटर लेवल जो है वो टेबल जो है बराबर की आ जाए। तो वो लोग बोलते हैं कि वाटर शेड की जो प्रोग्राम है क्या वो अच्छे तरीके से काम करेगा, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रोग्राम हम इसे फॉलो करें और ये काम ना करे। तो जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास चलते हैं, बीडीओ, ही इज अ ऑफिसर, मतलब ये एग्जाम दे के ऑफिसर बनता है, ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। बीडीओ से जाकर मिलते हैं और वो हमें बताएगा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है, हर ब्लॉक का एक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस ब्लॉक में जितना भी डेवलपमेंट होना है उसका रिकॉर्ड रहे उसके पास, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस कोई किसी भी ब्लॉक में क्या क्या डेवलपमेंट कराना है, ठीक है। तो वो पंचायत वाले लोग होते हैं, बीडीओ के पास जाते हैं, कहते हैं कि देखिए हमें इस स्कीम के बारे में ज्यादा बताइए। वो सोचते हैं कि चलो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे, बताएंगे कि हमारे गांव में ये समस्या है और सब ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ है और हम ये करना चाहते हैं, क्या ये ठीक है या हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। ठीक है, 3 लेवल ऑफ पंचायत। पंचायत के 3 और लेवल होते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं, नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। देन लोकल लेवल में आती है पंचायत, उसके भी 3 लेवल हैं। वी विल सी कौन कौन से लेवल हैं। After reading about what happened, the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which the people participate in their own government. The Panchayati Raj system is the first tier or level of democratic government. The Panch and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is the member of the Gram Sabha who elect them. The idea of people's participation in the Panchayati Raj system extends to 2 other levels, one of the block level and which is called the Janapad Panchayat and the Panchayati Samiti. The Panchayat Samiti has many Gram Panchayat under it. Above the Panchayati Samiti, the district Panchayat, the Jila Panchayat. Okay, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट, ये होती है फर्स्ट टीयर ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट टीयर। देन सेकंड आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज सेकंड टीयर गवर्नमेंट। देन वी हैव नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल गवर्नमेंट, दिस इज थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, उसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट भी 3 टीयर में डिवाइडेड है। पंचायत मतलब पंच जो होते हैं वो 5 लोग। देन वी हैव अ पंचायत समिति, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर होती है, ठीक है। और उसके बाद आती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सी होती है, जिला परिषद, या फिर हम इसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इट मीन्स कि हमारा देश अब कितने सारे एडमिनिस्ट्रेशन में, कितने सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड हो गया है। सबसे नीचे आता है पंचायत, ठीक है, जहां से सारे के सारे लोग जुड़े हुए हैं। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ आवर कंट्री इज एसोसिएटेड विद पंचायत, ठीक है। पंचायत या फिर टाउन्स में कहें तो म्यूनसिपैलिटी, ओके। देन कम्स, पंचायत के ऊपर आता है क्या, व्हाट वी आर स्टडिंग अबाउट द पंचायत, देन पंचायत समिति, ओके। द सेकंड थिंग इज पंचायत समिति, और उसके ऊपर आता है जिला परिषद, और वी कैन से डिस्ट्रिक्ट पंचायत। देन ये बात हो गई डिस्ट्रिक्ट तक की, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। अगर और उसके ऊपर कौन सी गवर्नमेंट होती है, उसके बाद होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। देन स्टेट गवर्नमेंट आल्सो हैज अदर टीयर्स एंड देन कम्स द नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, ओके। सो जिला परिषद, पंचायत समिति एंड पंचायत। पंचायत में कौन कौन से लोग आते हैं, जितने भी उस गांव में वोट दिया, मान लीजिए 5,000 लोगों का गांव है, 5,000 लोगों ने वोट दिया, दिस ऑल 5,000 फ्रॉम अंडर पंचायत। देन पंचायत समिति, इसमें अलग अलग गांव आएंगे, मान लीजिए 4-5, मतलब 10 गांव हैं, 10 विलेजेस, या फिर 10 ग्राम सभाएं इसमें इन्वॉल्व होंगी, ओके।
जिला परिषद में जिला में जितने भी गांव है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव हैं वो सारे गांव, 100 गांव, 200 गांव, 500 गांव, 600 गांव, वो सारे के सारे उस जिला परिषद में इन्वॉल्व होते हैं। जिला लेवल पर कोई डिसीजन लेना है, देन जिला परिषद विल टेक दैट डिसीजन। ओके, सो लेट्स सी, come to the next point. What is the next point? Jila Parishad actually makes a development plan at the district level with the help of Panchayat Samiti. It also regulates the money distribution among the Gram Panchayat. And then within the guideline which given in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to Panchayat. The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voice. Okay, so what do we mean by Panchayat? सबसे पहले होता है पंचायत, या फिर हम कहें ग्राम सभा। उसके ऊपर आ जाता है ब्लॉक समिति, जो ब्लॉक लेवल पर होती है, ठीक है। और उसके ऊपर होती है इट इज नॉट ब्लॉक समिति, इट इज पंचायत, it is panchayat samiti. Okay, and then comes the block level government, and this is जिला परिषद। हमारा कंट्री जो है इंडिया, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, states and union territories. Okay, states are divided into blocks are divided into towns, or we can say villages are divided into wards, ठीक है। अब देखिए, सबसे नीचे कौन आ रहे हैं, वार्ड आ रहे हैं, उसके बाद विलेज, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद स्टेट, उसके बाद पूरा कंट्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वार्ड क्या होते हैं, 5 जो पंच हो रहे हैं वो अलग अलग वार्ड से आ रहे हैं, उन लोगों ने पंचायत बना दी, सरपंच हो गए वो लोग। ओके, देन विलेज की पंचायत सभा हो गई, देन ब्लॉक की पंचायत समिति, देन ब्लॉक की आई, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक के लेवल के जो भी डिसीजन लेने होते हैं, डेवलपमेंट करना होता है, वो सारे ये ब्लॉक के लेवल के ऑफिसर्स लेते हैं, है ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं। ग्राम सभा को पैसे जैसे बांटते हैं, कौन सी ग्राम सभा को कितने पैसे देने हैं, कहाँ देने हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि एक एक प्रधान के पास जाएगी, कितने सारे 600 प्लस विलेजेस हैं हमारे कंट्री में, नॉट 600 प्लस, मोर देन 1000 villages are there and 600 plus are district in our country. Okay, this is district, sorry, है ना। तो क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट पे कर रहे हैं वो लोग ब्लॉक वालों को देते हैं, देन इट गोज टू विलेज, ठीक है। ऐसे करके पैसा आता है हमारी गवर्नमेंट का, ऐसे करके हमारे डेवलपमेंट चलते हैं, इस तरीके से हमारा गवर्नमेंट काम करता है। सो देयर आर 3 level of government: national level, state level, and local level. And in local level there are 3 levels of government: panchayat, panchayat samiti, and third is jila parishad. Okay, so we have completed our chapter and now we are winding up this chapter. That's all for today.